Welcome, my dear students. Let us continue the reading of the remaining textual part of the chapter, The Adventure, authored by Jayant Narlikar. Till now, we have read that Professor Gaitonde, who is on a mission to decode his mystery about the history, and mainly the part of the history which is pertaining to the 1857 revolution and the times just before that, when East India Company departed from our country. So Professor Gaitonde has visited the Asiatic Society Library. There he found 5 history books. He has gone through all of them and he got confused with the account he went through about the Battle of Panipat, and mainly the events which occurred just before the 1857 revolution. So as you know, while leaving the library, he has put some notes in his pocket, one pocket, and in another pocket he has put the Bhau Sahibachi Bakhar, an account of history, which is though not much reliable, but for enjoyment sometimes, and sometimes he may find some facts also buried in these Bhau Sahibachi Bakhars. So in the first page which he torn from a book, he found that Vishwas Rao, who was the Maratha leader, the leader of the Maratha army, who could be saved by that is from a bullet injury. A bullet passed close to his ear, but he could be saved, and God was fortunate. God showed its mercy on him. But in the Bhau Sahibachi Bakhar, he came to know about the incident that Vishwas Rao headed towards the melee, or the place where the soldiers of both sides were in conflict and they were in clash. They were engaged in an intense fight. There he went and attacked the Abdalis, but God was not with him and the bullet hit him and he was dead there. So these are two incidents found contradictory to each other in the parts of history, that is from different books, from two different written works. He found the same incident in different accounts, or you can say फर्स्ट में विश्वास राव बच गए और सेकंड इंसिडेंट जो भाऊ साहिबाची बाखर में लिखा है उसमें विश्वास राव जो है डेड डिक्लेयर किए गए हैं, उनको गोली लग चुकी थी. सो इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए अब प्रोफेसर गायतोंडे इज़ टेकिंग द हेल्प ऑफ राजेंद्र देशपांडे. एंड जैसे ही उन्होंने बताया कि आप क्या कर रहे थे उस समय, एंड what happened to you or what were you thinking about at the time of accident. So as you know, Professor Gaitonde met with an accident while going for a post dinner walk. So at that time he revealed that he was thinking about the catastrophe theory. Okay, this is catastrophe theory. What is it? Catastrophe theory is a sudden shift in behavior due to changes in small circumstances. कुछ भी आप सोच रहे हैं और उनकी वजह से कुछ भी सोच रहे हैं और उसकी वजह से आपके जो बिहेवियर है उसमें अचानक से कुछ चेंज आ जाए, राइट. सो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में वो सोच रहे थे. एंड व्हाट वाज दैट कैटास्ट्रोफी? ही वाज थिंकिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, दैट हैड द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत gone in opposite direction, or had it been opposite, what the course of Indian history would have taken. अगर बैटल ऑफ पानीपत में अब्दालीज हार जाते और मराठा जीत जाते तो फिर इंडियन हिस्ट्री में किस तरह के बदलाव आते, इसमें किस तरह के मोड़ आते. यही उनकी कैटास्ट्रोफ थ्योरी थी, मीन्स किस तरह के चेंजेस आते इसमें. सो लेट अस प्रोसीड. दिस वाज द रिकैप अबाउट द
चैप्टर। राजेंद्र motioned him to silence and started pacing the room। अब राजेंद्र उनकी जो बात है वो सुन के कि ओके आपने मुझे कुछ मटेरियल दे दिया है टू कंटेम्पलेट, टू थिंक ओवर, एंड सर्टेनली आई वुड लाइक टू कन्विंस यू अबाउट द इंसिडेंट you had met during that night। सो इतना बोल के राजेंद्र देशपांडे बिल्कुल चुपचाप अपने रूम में आगे पीछे घूम रहे हैं, मीन्स वॉकिंग कर रहे हैं और एक थॉटफुल मूड में हैं, विचारशील मूड में हैं। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, ही वॉज अंडर ग्रेट मेंटल प्रेशर। फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेड, प्रोफेसर गायतोंडे, आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ 2 साइंटिफिक थ्योरीज एज नॉन टूडे। सो बोलते हैं गायतोंडे साहब, मैं आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसको रेशनलाइज करने की कोशिश करूँगा, मीन्स लॉजिकली इसके ऊपर कुछ ना कुछ मैं अपने व्यूज़ दूंगा, और वो भी जो आज के दिन 2 साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनके बेस के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स ओनली यू कैन जज, फॉर यू हैव इंडीड पास थ्रू ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर करेक्टली ए कैटास्ट्रॉफी एक्सपीरियंस। सो कहते हैं कि whether you are convinced or not means whether you agree with my solution or not, it is up to you, because you are a better judge, you are more experienced than me, you have experienced the catastrophe theory only also, okay, and you had a fantastic experience of so many meetings. So I will try to explain you the fact behind your journey to Bombay for 2 days during that night, and it is up to you, how do you take it? Please continue Rajendra, I am all ears, Professor Gayatonde replied। Rajendra continued pacing as he walked। So Professor Gayatonde बोलते हैं कि मैं आपको I am all ears मीन्स मैं आपको पूरी अटेंशन के साथ, मैं पूरी तरह से आपको सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, आप बताइए मुझे। और राजेंद्र देशपांडे अपने रूम में आगे पीछे घूम रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। नाउ ही इज कंटेम्पलेटिंग, यू हैव हर्ड ए लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी at that seminar, let us apply it to the battle of पानीपत। सो बोलते हैं कि गायतोंडे साहब आपने कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में बहुत सुना है और इसी कैटास्ट्रॉफी थ्योरी को हम बैटल ऑफ पानीपत में अप्लाई करते हैं। सो व्हाट इज कैटास्ट्रॉफी थ्योरी? मीन्स सडन शिफ्ट इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर में अचानक कुछ चेंज आ जाए ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस और सिचुएशन, किसी सिचुएशन को लेके, वही कैटास्ट्रॉफी थ्योरी है। वार्स फाउट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स ऑफर एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी। सो जो फेस टू फेस वार्स होते हैं उसमें इस थ्योरी के एग्जाम्पल बहुत स्टीक मिलते हैं, मीन्स प्रॉपर एग्जाम्पल, एंड सो मेनी एग्जाम्पल वी कैन फाउंड फ्रॉम द वार्स फाउट फेस टू फेस। कैसे कि यू कैन से दैट एक समय तो एक तरफ की आर्मी दूसरे पे हावी है और थोड़ी देर बाद में अगर उनका सेनापति, उनका लीडरशिप अगर स्कम कर जाती है, सो उसके पेरिस कर जाती है, तो उस केस में क्या होगा, जो दूसरे वाली अपोजिट्स हैं, अपोनेंट्स है, वो उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, मीन्स दे विल स्टार्ट डोमिनेटिंग देम। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द रिजल्टेंट वेरीज वेरी क्विकली, वेरी फ्रीक्वेंटली। सो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के लिए बहुत ही exact, you can say this is an excellent example। The Maratha army was facing Abdali's troops on the field of Panipat, so it is correct। मराठा और अब्दालीज की जो ट्रूप्स थे, जो आर्मीज थी, वो एक दूसरे के सामने सामने थी बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में। देयर वाज नो ग्रेट डिस्पेरिटी बिटवीन दी लेटर्स ट्रूप्स एंड दी अपोजिंग फोर्सेस। डिस्पेरिटी मीन्स डिफरेंस। सो कहते हैं कि अब्दाली की जो सेना थी उसमें और जो मराठाओं की सेना थी उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वो ऑलमोस्ट इक्वल वेलर के थे और इक्वल स्ट्रेंथ थी उनकी। देयर आर्मर वाज कंपेरेबल, आर्मर मीन्स वेपन्स, सो देयर वेपन सिस्टम वाज ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल स्टैंडर्ड। So a lot depended on the leadership and the moral of the troops. So as you know that if the armament or the weapons are of equal strength, of the same technology, advanced level, definitely then what depends on the battle, who will win it? It depends on the leadership qualities. Who succeeds in keeping the morale of the troops up, definitely he will
win the battle. So the juncture at which Vishwas Rao, the son of and heir of Peshwa, was killed proved to be the turning point. So वो बताते हैं कि गायतोंडे साहब जिस जंक्चर पे, जिस मोमेंट पे विश्वास राव जो कि पेशवा के बेटे थे और उनके सक्सेसर भी थे, जैसे ही वो मीन्स बैटलफील्ड में मर गए, इससे एक टर्निंग पॉइंट आ गया उनकी आर्मी में। जब कोई सेनापति किसी सेना का मर जाता है तो डेफिनेटली जो उनके जो ट्रूप्स हैं, जो उनकी आर्मी होती है, सेना होती है, उनका मोरल टूट जाता है। एज हिस्ट्री हैज़ इट, हिज अंकल भाऊ साहिब रश्ड इनटू द मिली एंड वाज नेवर सीन अगेन। हिस्ट्री में ये तो दिया हुआ है कि उनके जो अंकल थे भाऊ साहिब, क्योंकि विश्वास राव और भाऊ साहिब यही दोनों वहाँ पे बैटल में गए हुए थे पानीपत के युद्ध में, और भाऊ साहिब तो एक बार वहाँ पे गए थे, मिड मीन्स युद्ध के मैदान में चले गए थे और उसके बाद फिर वो दिखाई नहीं दिया उसके बाद। इट मीन्स ही डाइड देयर इटसेल्फ। वेदर ही वाज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट मीन्स वो युद्ध में मर गए या जिंदा हैं अभी भी किसी को नहीं पता है। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर्स वाज क्रूशियल। बट कहते हैं कि उनकी सेना के लिए अपने सेनापति को खो देना मीन्स भाऊ साहिब का वहाँ से गायब हो जाना एक बहुत बड़ा उनके लिए एक जर्क था। इट वाज ए बिग सेटबैक, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था, झटका था, ठीक है, क्योंकि उनकी लीडरशिप खत्म हो गई थी। दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट। सो ऑब्वियसली द ट्रूप्स, द आर्मी ऑफ मराठास लॉस्ट देयर मोरल, fighting spirit and morale they lost all of a sudden when they came to know that their leader Bhau Sahib didn't return from the melee. There followed an utter rout means उसके बाद उनकी एक बहुत ही भीषण हार हुई, defeat. Exactly professor, and what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle when the bullet missed विश्वास राव। सो कहते हैं कि प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही है, जब आपने उस पेज पे दिखाया मुझे कि विश्वास राव के कान के पास से गोली निकल गई थी, वो बच गए थे, तो वो कहता है कि वो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है। उस समय उनका मोरल अप हो गया था अपने सेनापति को जिंदा देख के। ए क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे मीन्स जहाँ वो हार रहे थे अभी उनमें जोश आ गया। दे वर फुल ऑफ जोश, दे वर फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड दे वर फुल ऑफ फाइटिंग स्पिरिट एंड मोरल वाज हाई। सो दे कंटिन्यूड टू क्रश द troops of Abdalis and its effect on the troops was also the opposite means जो इफेक्ट था वो भी अपोजिट हुआ। अभी तो सेकंड वाले पे जो भाऊ साहिब बाची बाखर है इसमें तो हमने देखा कि वो हार गए मराठा, लेकिन पहले वाले पेज में जो हमने पढ़ा है उसमें उनका मोरल हाई था और वो जीते, इसमें ये दिखाया गया है। इट बूस्टेड देयर मोरल एंड प्रूव्ड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेटस दैट मेड ऑल द डिफरेंस, राजेंद्र सेड। और राजेंद्र देशपांडे बोलते हैं जब उस बुक में ये लिखा है कि बुलेट उनके पास से निकल गई, उनका मोरल हाई हो गया, स्पिरिट उनका हाई हो गया, सो उससे कहता है कि बहुत बड़ा चेंज आ गया उनमें, और यही कहता है कि एक डिफरेंस हमारे सामने क्रिएट कर रहा है कि वन साइड वी हैव लर्न दैट मराठास लॉस्ट द बैटल, ऑन द अदर हैंड वी फाउंड दैट दे वन इट बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम बैटल विच इज़ ड्राइविंग अस टू ए ह्यूज कन्फ्यूजन। Maybe so similar statements are made about the Battle of Waterloo, which Napoleon could have won. Means Napoleon भी Battle of Waterloo को जीत सकते थे, और उनके बारे में कुछ ऐसे ही कयास इसी तरह के अंदाज लगाए जाते हैं कि उनके साथ में उनकी भी आर्मी का मोरल टूट गया होगा। बट वी लिव इन ए यूनिक वर्ल्ड विच एज ए यूनिक हिस्ट्री। सो हमारी जो दुनिया एक है और इसमें एक ही हिस्ट्री है। We all read the same. This idea of it might have been is okay for the sake of speculation, but not for reality. कहते हैं ऐसा हुआ होगा, ये तो हमारा मानना है, ये सब अंदाज़ा लगाने के लिए, स्पेकुलेशंस के लिए, प्रिडिक्शंस के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। जो हुआ था वो ही हुआ था। वी कांट से दैट इट माइट हैव हैपन्ड, अगर ऐसा होता तो वो जीत जाते। दिस इज़ नॉट द सिचुएशन ऑफ हाइपोथेसिस, ओके। वी कांट say that this might have happened, okay. So hypothetical situation को यहाँ पे नहीं लेके आना है, हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। I take issue with you there, in fact, कहता मैं आपसे सहमत हूँ वास्तव में। That brings me to my second point which you may find strange, but please hear me out, राजेंद्र से। और राजेंद्र देशपांडे बोलते हैं कि मैं अपना सेकंड पॉइंट अब आपको बताने जा रहा हूँ, आप मुझे ध्यान से सुनना।
और मैं आपसे एग्री हूँ कि हिस्ट्री तो यूनिक है और इसमें हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं। गंगाधर पंत लिसनड एक्सपेक्टेंटली एज अदर कंटिन्यूड, सो ही कंटिन्यूड listening to Rajendra Deshpande and he narrated about his second scientific theory. What do you mean by reality? कि reality क्या होती है? We experience it directly with our senses or indirectly by instruments. So is the reality something which comes to us through our senses or इनडायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स क्या हम जो सुनते हैं वो रियलिटी होती है, बुक्स में पढ़ते हैं वो रियलिटी होती है, या जो देखते हैं डायरेक्टली जिसको हम मीन्स आंखों देखा, आई विटनेस, वही रियलिटी होती है। बट इट इज़ लिमिटेड टू व्हाट वी सी। ओके, कुछ भी हो, हम जो देखते हैं वही रियलिटी है, वहीं तक सीमित है। डज इट हैव एनी अदर मैनिफेस्टेशंस, मीन्स इसकी कोई और भी एविडेंस है रियलिटी की, कि रियलिटी कैन बी सेंस द रियलिटी बाय सम अदर मीन्स ऑल्सो? नो, आई डोंट थिंक सो। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ लिमिटेड अप टू व्हाट वी सी। जो हम देखते हैं वही रियलिटी है भाई। ये तो बोला जाता है कि वट एवर यू सी इज़ रियल, डोंट बिलीव ऑन योर ईयर्स, बिलीव ऑन योर आइज। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स। सो दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम। और रियलिटी जो है ये यूनिक नहीं है नेचर में, ये डिफर करती रहती है। इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय दी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स स्मॉल सिस्टम्स के ऊपर किया गया है। कौन से? एटम्स। एटम से स्मॉल तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, एज यू नो, ऑफ एटम्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो एटम्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एज यू नो। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम्स द फिजिसिस्ट मीन्स साइंटिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग। और कहते हैं जब साइंटिस्ट डील कर रहे थे एटम्स की स्टडी कर रहे थे, उस समय उनने कुछ हैरान करने वाली चीज़ें देखी, डिस्कवर की। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड डेफिनेटली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन। कहते हैं अगर हमें सारे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है, तब भी इनके एग्जैक्ट या डेफिनेट बिहेवियर के बारे में हम पहले से पता नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट प्रिडिक्ट। दिस इज व्हाट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। Take an example. I fire an electron from a source. So I am firing an electron from a source. This is one example. Where will it go? बताइए कहाँ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जो मैंने फायर किया है? If I fire a bullet from a gun in the given direction at a given speed, I know where it will be at later time. So कहता है एक तो मैंने इलेक्ट्रॉन फायर कर दिया सोर्स से, हमें नहीं पता कहाँ गया है, और दूसरी तरफ मैं एक बुलेट फायर करता हूँ एक गन से एट ए गिवन स्पीड, आई नो वेयर इट विल बी एट लेटर टाइम। मीन्स उसके बाद ये कहाँ पे होगी, कितनी दूर जाएगी, किस स्पीड से जाएगी, सब कुछ हमें पता रहता है। यही डिफरेंस है। बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। बट क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकता हूँ कि किस स्पीड से जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ पे होगा? नो, वी कांट से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन is having its arbitrary direction and moment which is not known to us. It may be here, there, anywhere, यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है। ये तो I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time. Quote odds means probability. कहता है I can say its probable position। कहता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पे इसकी एक स्पेसिफाइड लोकेशन में उसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स उसको संभावना बता सकता हूँ कि कहाँ पे होगा, एग्जैक्ट मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। एंड दैट इज व्हाट नोन एज क्वांटम थ्योरी, लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, दिस इज व्हाट यू हैव रेड इन साइंस। इवन एन इग्नोरेमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज़ हर्ड ऑफ इट, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। प्रोफेसर गायतोंडे बोलते हैं कि मेरे जैसे जो अनजान, इग्नोरेमस, जो बहुत ही कम लेस नॉलेज जो हिस्टोरियन है, उनको भी पता है कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है। उसमें भी लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म है। मीन्स वी कैन नॉट डिटरमिन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर टाइम, इट कीप्स ऑन मूविंग इन इट्स न्यूक्लियस। सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, इन अनदर इट इज़ ओवर देयर। कहते हैं कि इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं, न्यूक्लियस, एटम्स हैं, और एक में इलेक्ट्रॉन एक जगह पे है, दूसरे में दूसरी जगह पे है। इन येट अनदर इट इज़ इन ए स्टिल डिफरेंट लोकेशन। और कहते हैं किसी
तीसरे के बारे में अगर बात करें तो थर्ड वर्ल्ड में ये कुछ और ही लोकेशन में मिलता है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। और कहता है अगर ऑब्जर्वर हम में से कोई ये बताए कि ये कहाँ पे है, तो डेफिनेटली ये समझ लीजिए कि हम किसी एक ही वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, बल्कि दूसरे वर्ल्ड में कहीं उस दूसरी लोकेशन में होगा, और तीसरे में कहीं और होगा, फोर्थ वन में कहीं और। मीन्स इन n नंबर ऑफ वर्ल्ड्स एन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग n नंबर ऑफ लोकेशंस, इट इज नॉट हैविंग ए यूनिक लोकेशन, बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम। कहते सारे सारे हमें सेम दिखाई देंगे, बट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम। राजेंद्र पोज टू मार्शल हिज थॉट्स, और उसके बाद में राजेंद्र देश पांडे अपने जो विचार हैं उनको और गहनता से एक्सप्रेस करने के लिए वो कुछ सोचते हैं। बट इन देयर इज देयर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, प्रोफेसर गायतोंडे आस्क्ड। अब गायतोंडे साहब पूछते हैं कि ये जो डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं इनके बारे में कोई कनेक्टिविटी है क्या? इज देयर एनी रेलेवेंस बिटवीन दिस, कनेक्टिविटी बिटवीन दिस? यस एंड नो, हाँ और ना भी। मे इमेजिन टू वर्ल्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहता है आप इमेजिन कीजिए दो डिफरेंट वर्ल्ड, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की चारों तरफ ही चक्कर लगाता रहता है, एक एटम की जो न्यूक्लियस होती है उसमें, बट द लोकेशन इज डिफरेंट लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। और उसी तरह अराउंड लगाता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड लगाते हैं। गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, नॉट क्वाइट सो। गंगाधर पंत बीच में बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल, नॉट क्वाइट मीन्स ऐसा नहीं है। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की तो ट्रेजेक्टरी में पता है, भले इलेक्ट्रॉन की ना पता हो। ट्रेजेक्टरी मीन्स द पाथ फॉलोड बाय एन ए प्रोजेक्टाइल और एन ऑब्जेक्ट आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम इट्स सोर्स। अगर हम बुलेट भी फायर करते हैं गन से, तो आफ्टर लिविंग द मजल ऑफ ए गन, ए बुलेट ट्रेवल्स एट ए फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी, यू कैन से एट इट्स ओन ट्रेजेक्टरी अकॉर्डिंग टू इट्स स्पीड, दैट इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। एक पाथ को जो फॉलो करती है उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलेट यहाँ से फायर होती है और ये इस तरह आगे बढ़ती है, दिस इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। मिसाइल की ट्रेजेक्टरी होती है, रॉकेट की ट्रेजेक्टरी होती है। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स। कहते हैं इलेक्ट्रॉन तो लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट में कहीं भी घूम रहा होगा, ओके, बट प्लैनेट्स की तरह फिक्स ट्रेजेक्टरी है, उसमें ये रिवॉल्व करते हैं। ओके देन दीज स्टेट्स मे बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड। In state number 1 we have the electron in a state of higher energy. In state number 2 it is in a state of low energy. It can make a jump from higher to low energy and send out a pulse of radiation. So what may happen? High energy state से low energy state में जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड एज यू नो एट द ड्यूरिंग द फेज ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी इज ऑल्सो एमिटेड, सो रेडिएशन, पल्स ऑफ रेडिएशन ऑल्सो comes out, or a pulse of radiation can knock it out of state number 2 into state number 1. कहते हैं अगर हम उसको pulse of radiation मीन्स उसको हीट दें तो हो सकता है लोअर जो स्टेट है आपका, लोअर एनर्जी स्टेट है, उससे हायर एनर्जी स्टेट में भी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का हो जाए। रिवर्स भी पॉसिबल है प्रोवाइडेड वी गिव दी सफिशिएंट एनर्जी और रेडिएशन टू स्टेट नंबर 2। सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। तो कहते हैं इस तरह के ट्रांजिशन बहुत ही कॉमन है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जो वर्ल्ड है या सूक्ष्म जो सिस्टम्स है इसमें। व्हाट इफ इट हैपेंड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, राजेंद्र सेड। और कहते हैं अगर यही काम बड़े लेवल पे हो तो क्या होगा जो आपके साथ हुआ है। I get you. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again. गंगाधर पंत आस्क्ड। और गंगाधर पंत इस बात को समझ आते हैं, कहता है मैं समझ रहा हूँ आपको, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं एक वर्ल्ड से और दूसरे वर्ल्ड में ट्रांजिशन किया, मैं शिफ्ट किया था, आपका कहने का मतलब ये है, और तभी मैंने ये सब सोच लिया। फैंटास्टिक थॉट इट सीम्स, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर। और इस पर राजेंद्र देश पांडे बोलते हैं बिल्कुल सही आपने सोचा है, मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था। एंड नाउ यू हैव गॉट द आइडिया बिहाइंड योर 2 days विजिट टू मुंबई एंड अबाउट योर कन्फ्यूजन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट नाइट। माई थ्योरी इज दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। मीन्स अलग अलग दुनिया में हम प्रोसीड करते हैं कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस में, क्योंकि उस समय हमारे बिहेवियर में अचानक ही कोई चेंज आ जाता है और उस चेंज की वजह से हम एक जगह पे फिक्स नहीं रहते हैं। इट सेम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न ऑल अल्टरनेटिव्स आर वायबल बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम। जो कहते हैं एज फार एज रियलिटी इज कंसर्न
सारे अल्टरनेटिव्स पॉसिबल हैं, वायबल मीन्स पॉसिबल है, फिजिबल हैं, लेकिन कहता है कि जो ऑब्जर्वर है वो एक टाइम में एक को ही एक्सपीरियंस करता है, एक ही दुनिया में रहता हो एक टाइम में। जैसे हम ड्रीम में, सपने में कहीं भी घूम के आते हैं, प्रैक्टिकली वी आर हियर ओनली। अब हम उस समय सोच रहे हैं सपने में कहीं पे भी कुछ नाइटमेयर ले रहे हैं, बुरा सपना देख रहे हैं कुछ भी, तो हम वहाँ पे घूम रहे हैं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वेरी वर्ल्ड, दैट्स वाई वी बिकम टेरिबल, वी बिकम फ्राइटेंड ऑफ दिस नाइटमेयर्स। जो डरावने सपने होते हैं उनसे डरते हैं हम, क्योंकि हम इस प्रैक्टिकल दुनिया से दूर रहते हैं। और जैसे हमारा सपना टूटता है, वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल वर्ल्ड एंड वी आर फ्री फ्रॉम एनी डेंजर, वी फील सेफ आवर सेल्फ। ओके, अगर बुरा सपना देख रहे हैं तो आप, यही तो है कि हम एक समय में एक ही दुनिया में रहते हैं, भले ही सारे के सारे पॉसिबल हों। बाय मेकिंग ए ट्रांजिशन यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल्दो वन एट ए टाइम। सो कहते हैं कि जो ट्रांजिशन आपने किया है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जो आप चले गए थे, उस समय आपने यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल्दो वन एट ए टाइम, एक ही समय पे दो वर्ल्ड्स को आप एक्सपीरियंस कर रहे थे। मीन्स यहाँ पे थे और उसी समय आप जो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में चले गए कि इसमें क्या हुआ होगा, whether the fight was between Marathas or the Abdalis. Dear students, I think this is sufficient for today. In the next session, we will continue it and we will try to cover up the question and answer part of the same. Thank you. Have a nice day.